गुड इवनिंग। हाँ, कल आपको समझ आ गया था बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज व्हाट? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू altitude, right? The question, first question we have, let us start with the first question. One, question one worksheet 3. Okay, one side of parallelogram is 14 centimeter and its distance from opposite side is 16.5. कैसे है ये बेटा? देखो ये पैरेललोग्राम है, let us suppose this is, let us try parallelogram here. मान लीजिए पैरेललोग्राम है, ठीक है, and the distance एक मिनट, कल किया तो नहीं था कोई क्वेश्चन हमने? हाँ जी, लेट अस सपोज दिस इज पैरेललोग्राम, दिस डिस्टेंस इज 16.5 सेंटीमीटर। ये कितना डिस्टेंस है बेटा? 16.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 14 सेंटीमीटर। You have to find out the area of the parallelogram. कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले लिखो given one side of parallelogram, क्या दी हुई है बेटा? वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम 14 centimeter and the altitude, that is this, and the altitude is what? Altitude is 16.5 centimeter. What to find out? We have to find out the area of parallelogram. We know that. पहले इधर लिखो, we know that. We know that area of parallelogram is equal to, one side means this is base into altitude. What is the base? Base is 14 and altitude is 16.5. Multiply करो बेटा, 14 5 दा 70, कितने बचे? 7, 14 6 दा 84, तो कितने बने? 91 1, 14 1 दा 14, 23, तो कितने बन गए जी? 231। ये कल कर लिया था ना बेटे? हेलो, ठीक है, समझ आ गया? कल 2 क्वेश्चन कर लिए थे पहले। हेलो, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये भी हो गया था कल, है ना? नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करो, कम टू द थर्ड क्वेश्चन। चलो रिपीट हो गया है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। हेलो बेटा, आवाज बंद करो। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में क्या है? द एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस ऑफ द लेंथ 15 सेंटीमीटर इज 18 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ इसका? देखो बेटा, ये है के अंदर द एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस लेंथ 15 सेंटीमीटर। बेस लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड इज 18 सेंटीमीटर। 80, दिस वन इज 18, फिगर थोड़ी गलत बनी है, ये 18 है सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लिखो, राइट डाउन given
क्या दिया हुआ है बोलो अग्रिमा, तुम बता दो। बेस इज इक्वल टू, बताओ, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, बताओ क्या दिया हुआ, शाबाश बोलो बेटा। बेस इज 15 centimeter and altitude is 18 centimeter. Therefore, yeah, we know, लिखो पहले. We want to find out area. We know that area of parallelogram is, क्या होता है, area of parallelogram is equal to base into altitude. What is base here? Base is 15 and altitude is 18. Multiply कर दो, 15 8 the 120, 0 लग गए, 12 बचे, 15 बनता 15, ऐड कर दो इसको, सर पिछला 27 करना। 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया बेटा सबको ये? यस सर। हाँ चलो आगे। सर पीछे वाला, ये पीछे वाला ही अभी चल रहा। क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया ना बेटा? यस Yes, सर। sir. ओके, शुड वी मूव नाउ? यस सर। Okay. Question number 5. Question number 5. In question number 5, find the area of rhombus. Now we came to the rhombus, whose one side is given and the altitude is given. देखो, given one side of rhombus. All the sides of rhombus are equal? Yes or no? Yes, sir. 8 centimeter, तो फर्क नहीं पड़ा कोई, ठीक है। And altitude is what? Sir, 0.6 decimeter. 0.6 डेसीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 0.6 multiplied by 10. That is equal to what? Sir, 6 6 centimeter. centimeter. Yes. Therefore, area of rhombus. Side multiply by altitude. Yes. Yes. Side or base multiply by altitude. Altitude. That is equal to what? What is the base here? That is 8 centimeter. That is 8 centimeter. 8 into 6. That is 8 6 the 48 Centimeter. centimeter square. Right? कर लो फटाफट बेटा। हो गया? सर एक मिनट रुकना। रुकिए जी। सर हो गया। चले आगे। Yes, sir. यस सर। हाँ, अंकज क्या बात है बेटा? 6th question. Find the altitude of rhombus whose area is given here. देखो, write down area of rhombus. Area of rhombus. Rhombus. That is equal to what? 320 meter square. And what is given there? Altitude is given or side is given? Side is given here. Side of rhombus is what? 5 meter. Therefore, we have to find out the altitude. क्या find out करना बेटा? Altitude. Altitude find out करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पता है एरिया किसके बराबर होता है? Write down here. We know that the area of rhombus is
we know that area of rhombus is equal to what? Base into altitude. What is base here? That is 5. And altitude is to find out. And area is what? 320. This implies altitude is equal to 320 divided by 5. 5 6 are 30. 5 4 are 64. 20. Yes. This implies altitude is 64 centimeter. yes. Sir, sorry. Altitude is equal to 64 centimeter. ठीक है बेटा? कर लो बेटा. Sir, meter. Sorry मीटर है, सेंटीमीटर में. लो मीटर. ठीक है? नोट कर लो फटाफट. नेक्स्ट क्वेश्चन. चले आगे कर ले सभी ना बेटे. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Question number 7. In question number 7, the height of the parallelogram is 1/3 of its base. Base के कितनी है? 1/3. If the area is 108 centimeter square, find base and height. आपको समझ आया क्वेश्चन? कह रहा है कि height of the parallelogram is 1/3. तीसरा हिस्सा है किसका? बेस का. ना बेस बताया ना हाइट बताई. बताया क्या है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. राइट डाउन. लेट सपोज करना पड़ेगा हमें. क्या करना पड़ेगा? लेट क्या करेंगे? लेट द बेस ऑफ पैरेललोग्राम. कितना है बेस ऑफ पैरेललोग्राम? दैट इज इक्वल टू एक्स X. से. ठीक है? therefore the altitude is what? Sir, 1/3x. Altitude is equal to 1/3x, right? And what is given here? Area. Area is equal to what? कितना Base दिया हुआ? multiply height. No, given पूछा मैंने. 108 सेंटीमीटर के. अब लिखो we know that area of parallelogram is equal to what? Base into altitude, है ना? Base into altitude. What is base here, beta? Base is x and altitude is Sir, 1/3x. 1/3x. And this is 108. Now, what happened? Now we will take, we can write like this first of all. 1/3x is equal to 108. Okay, which implies what? X into x square by 3. 3 को तो ले जाओ. 108 into 3. ठीक है? X square is equal to multiply करो. 8 3 जा 24. 0 लगा तो 2 आ गया इधर. 3 1 जा 3. 324. अब इसके फैक्टर बनाओ 324 के. बेटा ध्यान से समझना इस बात को. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए इस कैलकुलेशन के कारण. 324 इसके फैक्टर बनाओगे. फटाफट बनाओ. देखता हूँ कितने बनते हैं आपसे. बनाओ फटाफट. कौन बना रहा है? क्या बने फैक्टर? ध्यान से देखो रेड वाली जगह पे. 2 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर. ठीक है? यही बने ना बेटा? हेलो
बेटा ध्यान से समझना इस बात को। हाँ, क्योंकि आपको सिलेबस में ये नहीं है स्क्वायर रूट, इसलिए। तो ये क्या बन गया बेटा, आगे देखो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9। बेस से बेस लग गया, पावर सेम है इसलिए पावर बाहर निकाल ली, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, आप रफ लैंग्वेज में समझे, 2 से 2 कट गया, पर लिखना नहीं, काटना नहीं है आपने। तो क्या करना है फिर, ऐसे करना है, देखो ध्यान से। टेकिंग, ये वर्डिंग लिखनी है जो मैं लिख रहा हूँ। टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लिखना है, स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, ठीक है बेटे। आपने ये वर्डिंग लिखनी है, याद रखना। वी गेट, तो x कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, 2 9 था, 2 से 2 कट गया ना, ऐसे रफ में समझ लो इधर। एक्स स्क्वायर 2 से 2 कट गया इधर, तो क्या रह गया, 2 9 था, बोलो बेटा 18, 2 9 था 18, तो कितने बचे, आगे चलें। Therefore 18 आ गया ना x, तो बेस क्या माना था हमने, बेस इज इक्वल टू x। x कितना आ गया, 18। 18 क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर, सेंटीमीटर। एंड एल्टीट्यूड इज व्हाट, एल्टीट्यूड कितना है बेटा, 1/3 ऑफ x, 1/3, 1/3 into 80. हाँ 1/3 इंटू 18, तो कितना आ गया, 3 6 Sir, 18। 6 हाँ जी, ये आ गया दोनों, ठीक है। 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, समझ आ गया बेटे। Now Yes, come, sir. Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. The area of rhombus is given here and the perimeter. Very important question, beta. ये important question है. The area of rhombus. Write down पहला. Area of rhombus. Rhombus. That is equal to what? 119 centimeter square. And perimeter is what? Of rhombus. That is equal to what? What is the perimeter here? 56 centimeter. Right? Now, perimeter is given. From perimeter what we can find out, so क्या पता कर सकते हैं perimeter, तो बेटा बताओ शाबाश, है कोई आइडिया। देखो भाई, we know that, इधर लिखो, we know perimeter of rhombus. Rhombus is equal to what, 4 into side, सेम होता है जैसे स्क्वायर का होता है बेटे, ठीक है। दिस implies 4 into side. rhombus का पैरामीटर कितना दिया हुआ है, Sir, 56 centimeter. yes, that is equal to 56, which implies what, side is equal to Sir, 56/4. 56/4. अब क्या आ गया, 14 for the 56. This implies side is equal to 14 centimeter. Now want to find out area. एरिया फाइंड आउट करना है, दिया हुआ है, तो क्या पता करना रह गया बेटा, एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना। क्या पता करना, नाउ टू फाइंड
एल्टीट्यूड ये पता करना बेटा, तो लिखो वी नो एरिया ऑफ रोम्बस। क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस बेटा? बेस इनटू altitude, that is equal to, yes, base into altitude. The area of rhombus is 119 and the base is what? Good evening बेटा। गुड इवनिंग। लेट हो गए, क्या बात है? सर मेरे को मैसेज शो नहीं हो रहा था, नेट खत्म है ना इसलिए। अच्छा अच्छा, सर अभी करवाया एडजस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। Base is given here, that is base is what? This side is the base, base is 14, ठीक है, into altitude. We want to find out altitude, which implies what? Therefore, altitude is 119 divided by 14. चलो जल्दी करो। 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। एक मिनट बेटा, फोन आ रहा है। हाँ जी, हेलो, ठीक है, मैं फोन बाद करता था, मैं ना क्लास लेना है। हाँ, therefore altitude is, ठीक है बेटा, समझ आ गया? हेलो बेटा, समझ आ गया? हेलो, Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन। जिनको नहीं समझ आएगा दोबारा मैं डाल दूंगा इसको, वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 9, one side and the corresponding altitude of parallelogram are given here. ध्यान ना समझना क्वेश्चन है। One side and altitude of the parallelogram if are given. If other altitude is given, find the length of other pair of parallelogram. क्वेश्चन समझ आया कुछ कि नहीं? बोलो, यस और नो में बोलो। देखो ऐसे है पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है जी? 50 सेंटीमीटर। और ये थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, चलो एक मिनट बेटा। ये मान लो ये है ऐसे, ठीक है। one side is what? That is given here, 50, and the altitude is what? One side and the corresponding altitude is, altitude कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। ये समझ आ गया? पहले बताओ। दूसरी बात उसने बोली, if the other altitude is 4 सेंटीमीटर, अगर दूसरा एल्टीट्यूड कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तो बताओ, then tell the base बताना है आपको। क्या बताना है आपको? बेस। मान लीजिए ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड 4 है सेंटीमीटर, तो आपको ये बताना है बेस। क्वेश्चन समझ आ गया? पहले बताओ। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, वेरी इंपॉर्टेंट। Sir, क्या समझ? समझ आ गया ना? लिखो पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता करेंगे हम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। Sir, हाँ, लिखो फिर। वन साइड and altitude of parallelogram are, यहाँ गिवन लिख लो, गिवन are
इक्वल टू क्या है, वन साइड 50 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ये है दोनों दिए हुए। देयरफॉर एरिया कितना आ गया बेटा, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू एल्टीट्यूड। Base into altitude. What is base here? That is 50 and altitude is what? 8. Therefore 15 8 the 400 centimeters square. yes 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारे पास आ गया। अगर एरिया मिल जाए तो क्या मिल जाएगा हमें, एरिया तो सेम रहेगा ना, पैरेललोग्राम का एरिया तो सेम ही रहेगा। नाउ अब क्या है, दूसरी ओर का क्या दिया हुआ बेटा, एल्टीट्यूड। नाउ altitude to the second, sorry, other side is equal to कितना दिया हुआ बेटा, altitude to the other side is 4 centimeter. Therefore base is to find out, base find out करना, we know, हम जानते हैं that area is equal to base into altitude. What is area? Area is given. The base is to find out. This implies base is equal to what बेटा, base को इधर ही रहने दो, altitude को उधर ले जाओ, area upon altitude. What is area बेटा, area कितना दिया हुआ है, 400 सेंटीमीटर हाँ, और altitude is 4, 400 divided by 4 कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर is the base, other base is 100 सेंटीमीटर। समझ आ गया बेटे, सर 100। समझ आ गया आपको, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन रहा वो कल कर लेंगे, ठीक है, नो सर। कम बचा है इसलिए। गुड बाय, टेक केयर बेटा।